Okay, guys. So let's start class 10th maths chapter 6 triangles. Okay. First thing, anybody who can tell me what is the definition of a triangle? I want the best definition, precise, exact. Shall I, sir? Yeah. Okay, Viraj. Sir, a closed figure with three straight lines. A closed figure with. With three straight lines. Okay. Anybody else? This is not the precise. This is not A, exactly. sir, It's 90% right. Yeah. It can be three, all sir, three can be a equal. clo sir, Pratham. Pratham. a, Pratham. sir, a closed figure bounded by three line segments. Next. Next. So the Anybody else? line segments might be equal. It will make it equilateral triangle on an No, no, axis. no, 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 no. Sir, a Rajvardhan, shape, no. sir, a shape whose sum is 180 degree. No, no, galat, sab galat, sab galat. Sir, may I Is it try a again? polygon? Yeah. Is it a polygon firstly? Bas, Pratham. Is it a Yes, sir, polygon? it is a polygon. Yes, sir. Okay. It is the polygon with least number of sides. By the way, पता है तुम्हें? Least number of sides. छोटा Yes. polygon नहीं हो सकता. So, a polygon, ये exact definition आपने याद रखनी पूरी life अपने. A polygon made of three line segments. That's all. This is the definition of a triangle, right? Now, triangle of many type and all those things. Okay. All right. Achintya, good evening. Achintya. Okay. Triangle. A polygon made of three line segments is the definition of a triangle. Nothing else. Only these 6, 7, 8 words, whatever words, 6 words. और फालतू बात ही नहीं करनी. Nobody can find a fault in this. Nobody can find a fault in this. Now, right, guys. Do you know what is congruence? Yes, sir. Okay. Who's confident कि सर मैं क्या congruence की आपको best definition दे सकता हूँ? बताइए. Yeah. Okay. Go ahead. So we can have two triangles. We have to prove it all the angles and all the angles. It's not only the triangles are congruent. There are many things which are congruent. So I Shall want I- the definition of basic congruency. Yeah. So we have to prove that Shall I- angle. Rajvardhan. So we have to prove angle of those two polygons with exact degree. No. Shall I, sir? Galat. Yeah. Okay, Viraj. Yeah, it is basically a state in which two figures are proven similar, or basically they are transposed on varying different criteria. Wrong word. Similar is a wrong word. Similar, not the right word. Yeah, Ashi, go ahead. Two triangles are called congruent if they have exactly the same shape and the same size. Exactly. But it is not only triangle. It is true for a line. It is true for a circle. It is true for a quadrilateral. It's true for anything, any two-dimensional shape. And what is the definition of congruence? Same shape, same size. Nobody can find a fault with these 4 words. If you have a triangle which has exactly same shape but not same size, it is not congruent. But if you have a triangle which has got exactly same shape and exactly same size, this is congruent. If you have a line which is exactly same length, line L, and exactly same length, line M, क्योंकि width नहीं होती, line doesn't have a width, so this is congruent. If you have a circle with the same radius, this is also 3 centimeter, this is also 3 centimeter, then these are congruent. Now from congruence तो हमने पढ़ ली थी, छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई, 8th में पढ़ा था congruence. But today we are talking about similarity. Now, what is similarity? Just 2 words definition I am giving you. बाकी वर्ड तुम अपनी तरफ से लगा देना. When two dimension shapes are this. But जो crux word है वो ये है. Same shape.
These two words will define what is if the figures are similar or not. So all triangles are similar to each other. All lines are similar to each other. But are all triangles similar to each other? We will see now. So next thing I want to show you is what are the conditions in which two triangles will be similar. Okay, any doubt so far? Negative, sir. Negative. Achintya, Ashi, Kartikeyan, Mishra. भाई साहब मेरे नोट्स से अपने नोट्स बनाओ, मेरा वीडियो देख लो, मेरे साथ साथ चलो, मेरे कदमों पे चलो, तुम्हारे को हर चीज आसान लगेगी, गारंटी मैं इस बात की दे रहा हूँ. इफ समबडी कैन टेल यू इन अ मोर सिंपलर वे देन यू लेट मी नो कि सर वो वाला वीडियो देखना, उसने आपसे भी ज्यादा सिंपल पढ़ा है. टेल मी, आई विल वॉच दैट, एंड इफ इट इज राइट आई विल एक्सेप्ट इट. Okay, now I told you what is similarity. It is same shape. Okay, what is similarity of triangles? Now let us see. Corresponding angles are equal. Okay, corresponding angles are equal. और अच्छा, Corresponding पहले तो एक side- चीज बता देता हूँ मैं, corresponding क्या होता है. बहुत लोगों को corresponding का इशू आता है, पहले corresponding समझ लो. हाँ जी, Sir, please repeat the question. आई एम सेइंग corresponding क्या होता है, कि सबको पता है, ये मैं समझाऊं. corresponding parts होता है एक्चुअली, CPCT बोलते हैं ना. corresponding parts क्या होते हैं ट्राइंगल के. So let us say you have a triangle like this. You have a triangle like this. This is A, B, and C. And you have another triangle like this. You have another triangle like this. Another triangle like this. And this is PQR. ध्यान देना, बहुत गहरी बात है रवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब ये बता दिया हमें कि यार ये कॉन्ग्रुएंट है, इतना हमें बता दिया उस बंदे ने, कहता है यार ये कॉन्ग्रुएंट है. तो क्या मैं बोल दूं, तो अब कॉन्ग्रुएंट बोलते तो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं सीपीसीटी हो गया एकदम से. सीपीसीटी का मतलब तो जो मर्जी प्रूव कर दो. सीपीसीटी मतलब जो मर्जी प्रूव कर दो, ऐसे लोग बोलते हैं. ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कि ट्राइंगल ए बी सी वाला ट्राइंगल is equal to triangle PQR. Can I say this, guys? Is it true? Yes, sir, because they are congruent. Yes, sir, because of CPCD, sir. Everybody agrees? Sir, proof करना पड़ेगा उसको. नहीं, अभी कॉन्ग्रुएंट बताया है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो क्या ABC भी इक्वल टू PQR? Yes, sir. Yes, sir. CPCT बोला, Yes, sir. CPCT है. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ जी, बताओ कौन कौन बंदा कॉन्फिडेंट है कि सर ये तो मैं बता दूंगा. Sir, no, sir. Not Yeah. P. Yeah, okay. Yeah, I'm waiting. I was waiting for you, Achintya. No, sir. Go ahead. No, sir. It is not, sir. Achintya. Go ahead, Achintya. Sir, he's trying to speak, but he couldn't. तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ. Sir, may I try? Okay. Yeah. Sir, second rule, sir, ये भी लिखा ना. Corresponding sides should be proportional. नहीं, सेकंड रूल की तो बात ही नहीं हो रही यार. पहले मैं तुम्हारा ये तो सॉर्ट आउट कर दूं. सीपीसीटी क्या होता है? Sir, CPCT is corresponding parts of congruent triangles, but in this triangle, ABC is not the corresponding angle of एंगल टू PQR. वेल डन मैत्री, वेल डन. भाई सीपीसीटी का मतलब सुन लो मेरी बात. ये दो ट्रायंगल है तुम्हारे सामने, ये देखो, ये ट्रायंगल है. एक पे मैंने लिखा हुआ ABC, थोड़ा छोटा फोकस, आउट ऑफ फोकस होगा क्योंकि कैमरा वहां देख रहा है. कैमरा इज लुकिंग एट द बोर्ड, स्लाइटली आउट ऑफ फोकस होगा ABC. एंड देयर इज अ ट्रायंगल व्हिच इज PQR. ये PQR है. ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे ऊपर चढ़े हुए ये. लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर तभी चढ़ेंगे जब मैं R के ऊपर A को लगाऊंगा, Q के ऊपर B को लगाऊंगा और P के ऊपर O को लगाऊंगा और C को लगाऊंगा. समझ रहे मेरी बात? अगर मैं कहूं कि ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर दूं इनको, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. दिस इज दैट क्लियर? एक ही कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे
जब when I put these together, like R को A के ऊपर रखो और P को C के ऊपर और B को Q. Everybody understand this? This is important. Congruency only holds if I do it them like this. अगर मैं उल्टा करूंगा ऐसे करके तो वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे एक दूसरे को कवर. So what do I learn from this? I learn from this that if I have been told that these are congruent, then this is not correct. What is correct? Now let us see the congruency. और congruence को क्या होता है, लिखने का तरीका होता है. ट्रायंगल को ऐसे नहीं लिख सकते ABCP और कुछ भी लिख दो. जो congruent points है तो वो होनी चाहिए. देखो अब इस वाले में मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट बी की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट है पॉइंट बी, सबसे अलग बैठा हुआ है. देखते ही पता चल रहा है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर जाके बैठेगा. सो पॉइंट बी और पॉइंट आर जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है. सार्थक मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत लोग को 10th में आ गए तुम लोग, मैं पक्का यकीन है तुम में से बहुत लोगों को ये बात नहीं पता अब तक. पॉइंट बी आर से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और क्योंकि ये कॉर्नर बना रहा है यहां पे, ये सी से करेगा. पॉइंट सी क्यू से कॉरेस्पॉन्ड करेगा और रिजल्टेंटली पॉइंट ए किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा? पॉइंट ए करेगा जो बच गया. कौन है बच गया? ए से, पी से, पॉइंट पी. ये है. और जब मैं इस ट्रायंगल को लिखूंगा, कॉन्ग्रुएंसी इसकी लिखूंगा, दैट टाइम आई विल से ट्रायंगल ABC. ABC is congruent to PRQ. PQR नहीं लिखा, देखो PQR नहीं लिखा क्योंकि A P से कॉरेस्पॉन्डिंग है, B R से कॉरेस्पॉन्डिंग है और C Q से कॉरेस्पॉन्डिंग. अंतरिक्ष मेरी बात पॉइंट समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यस सर. अब क्या होगा? अब मैं देखो आसानी से कर सकता हूं. अब मैं बोलूंगा AB लाइन सेगमेंट AB साइड AB इज इक्वल टू साइड PR. साइड BC इज इक्वल टू RQ. साइड AC इज इक्वल टू साइड PQ. AC PQ. ऑल्सो अब एंगल्स देखना. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PRQ. एंगल ABC हो गया. ओके. एंगल CBA इज इक्वल टू, अब मैं देख रहा हूं किस किस के, CBA QRP एंड एंगल, एक और एंगल बच गया इसका, RPQ. एंगल RPQ कॉरेस्पॉन्डिंग टू R है BAC. अब एंगल बराबर हो जाएंगे आपके. BAC कौन सा है? BAC ये वाला है और RPQ ये वाला है. देखो अब इट डजेंट मैटर कि मैंने इस ट्रायंगल को वहां पे जब डिपिक्ट किया है, ऐसे किया है, टेढ़ा किया, मेढ़ा किया, कैसे मर्जी कर दो. मुझे पता है जब कॉन्ग्रुएंसी करूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग देखूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग तो जो जिसके ऊपर बैठना है, जो इसके ऊपर ओवरलैप करना है, वही उसके ऊपर लगाया जाएगा. This is a very important point of, very fine point of congruency, which more than 50% students just don't know. जैसे कि CPCT से कुछ भी पेल दो, उसको लगा दो, ऐसा नहीं होता. CPCT से होता है corresponding part only corresponding part will be equal. So now we understood what is corresponding part. This was important so that we now understand the similarity. Guys, corresponding part सबको पता, समझ में आ गया? ये CP. Yes sir. CP ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सब लोग मुझे कंफर्म कर दो क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तुम लोग सबसे कंफर्म करूं. CP समझ में आ गया? CPCT क्या होता है? डाउट पड़ेगा दोबारा वीडियो देख लेना. वीडियो देख के you'll come to know. Okay. Now that we understood कि भाई ऐसा नहीं है कुछ भी कुछ के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही एक दूसरे के इक्वल माने जा सकते हैं. Now let us look out this at the similarity of triangles. Good. रवि. Yes sir. ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो समझ में आ गया ना? Yes sir, clear. Now let us see what is the definition of similarity of triangles. Similarity
अच्छा, एक्चुअली सिमिलैरिटी का ना मैं तुम्हें एक बात बताई थी उस वक्त, जो मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन बताई थी, सेम शेप के अंदर 3 चीज शामिल है। देखो 3 चीज शामिल है। फर्स्टली, ओके, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं अभी इसको। फर्स्टली, या ये किसी के लिए भी है, ओके यहां लिख रहा हूं, रुको। नंबर 1, सेम नंबर ऑफ साइड। तो जब आप सिमिलर में कंपेयर करोगे, आप ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल को नहीं कंपेयर कर सकते, आप ट्राइंगल को ट्राइंगल से ही कर सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दे शुड बी इक्वी एंगुलर। तुम बोलोगे सर ये इक्वी एंगुलर, ANGLUAR, तुम बोलोगे सर ये तो पहली बार सुने, है क्या? इसका मतलब होता है So your video froze. Hello. Sir is just joining. One second. okay. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Audible? But the Okay, just give screen me a is moment. blue, Yes, sir. sir. Yeah, I know. The video is not going. So give me a moment, ये तो हो जाएगा sort out. Just yeah, आ जाएगा. I don't know, something happened. Wi-Fi totally collapse हो गया. Signal collapse हो गया, पता नहीं क्यों. Now it's okay. Yeah, okay. So, चलो. Right. Now, guys, just pay attention. So, corresponding angle should be equal. So, when I say corresponding angle, what do I mean? I mean, if there is a triangle like this,
S. And then there is a triangle like this. And I have here A, B, C, and this is P, Q, R. Now, if I have to prove that the triangles are similar, all I need to prove is that angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. The moment I prove it, I can say the corresponding angles are equal, and therefore the two triangles are similar. Okay, but there is one more condition. इक्विएंगुलर हो या तो इक्विएंगुलर हो जाए या फिर एक मिनट ओके सर वो रिपीट कर देना, लीव हो गई थी सर क्लास। ओके दोबारा बोल देता हूँ। तो बेसिकली एक पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि एक तो या तो जब भी आप कंपेयर करोगे भैया सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। ये तो यार किसी को बच्चों को समझ में आ जाएगा कि यू कांट कंपेयर द ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, सो ट्रायंगल से ट्रायंगल कंपेयर होगा। अब दो कंडीशन के अंदर सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है। पहला, या तो वो इक्विएंगुलर हो, यानी कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो वो इक्वल हो। तो मैं दो फिगर ड्रॉ की यहाँ पे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यार ये है कि ए पी, बी क्यू और सी आर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ए पी के, बी क्यू के और सी आर के, तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, तो तभी आपके सिमिलर बन जाएंगे। या फिर और थर्ड साइड है, थर्ड वो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में। सो या तो ये प्रूव हो जाए कि तीनों एंगल इक्वल हैं, और वो कह रहा ठीक है एंगल नहीं प्रूव कर सकते हम, एंगल हमें पता नहीं है, एंगल का क्या करना है हमें नहीं पता। तो हम बोलेंगे भाई देखो, अगर ए बी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी क्यू। अगर ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, रेशियो इक्वल नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आरपी एंड सी ए अपॉन आरपी। ये प्रूव हो जाए तब भी आप बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। सो ओनली टू कंडीशंस इन टू गिवन ट्रायंगल्स। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो आप और आपको अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें क्या करेगा, वो बोल देगा सिमिलर है, एक साइड दे देगा, दोनों की एक एक साइड दे देगा, बाकी दूसरे ट्रायंगल की तो दे देगा दो साइड, और बाकी दो साइड आपको बोलेगा निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो लेट्स एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उससे आप बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। सर थर्ड पॉइंट बता दो सर, क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम रेशियो बराबर नहीं चाहिए। अगर ये देखो फॉर एग्जांपल देता, फॉर एग्जांपल दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 2/3 का रेशियो हो गया। अगर उसने तुम्हें बीसी दे रखी है, लेट्स से बीसी इज 5 सेंटीमीटर और क्यूआर पूछ रहा है तुमसे, तुम बोलो क्यूआर एक्स है, चलो ठीक है, एक्स को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 7.5। ये 7.5 हो जाएगी अपने आप, क्योंकि रेशियो मेंटेन होगा अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है। लेट्स से थर्ड वन ही सेज, थर्ड वन इज, इसकी थर्ड वन है 3 नहीं देगा, ये बोलेगा आपको 4 है। तो अगर ये 4 है, ये वाली 4 है, ये वाली 4 है ऊपर वाली, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी? y मान लो, तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 4, y इज इक्वल टू 6, ये 6 हो जाएगी। हम आराम से निकाल सकते हैं फिर, क्यों अभी निकल जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं। रेशियो हम पर एक तो आ गया, बस इक्वल कर दो, ये कर दो, ये कर। चलो एक्सरसाइज करते हैं, मैं बताता हूँ कुछ। ओके 6.1 आई एम सेंडिंग इट। देखो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो कोई बात, आई एम वेरी श्योर विद दिस सिंप्लीफाइड दिस थिंग, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पकड़ में आ गया है। अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा अपने को कि कितना तुम्हें समझ में आया है।
10th revision. Okay. Yes. Okay, guys. I am. कोई भी आंसर ऐसे नहीं बताएगा. Please see in the chat box and write your answer in the chat box. I'll ask. Okay. थोड़ा सा वैसे आ गया जल्दीबाजी में. Anyway, मुझे पता है 1-2 लाइन तो पढ़ लोगे. मैं दोबारा भेज रहा हूँ ये पिक. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का आंसर दे दो मेरे को जल्दी. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. Okay, guys. पहला क्वेश्चन था all circles are dash. Let me see your answers. Yes. Remember I told you, no matter how much is the radius, all triangles are circles are similar, but they not congruent. Congruent तभी होंगे जब उनकी radius exactly same होगी. Okay. Answer part 3. All dash triangles are similar. Triangle 3. अरे 3 पूछा मैंने भाई. मैं 3 है. ठीक है आंसर आ रहे. ओ गुरुजी पार्ट 3 पूछा मैंने. पार्ट 3 दोबारा डालो सब लोग. हमने उसके डाल दिए सेकंड के. मुझे पता था सेकंड का तुम तैयार करके बैठे हो. All dash triangles are similar. Yes. क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की देखो खासियत क्या होती है. सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं. तो चाहे कितना ही बड़ा हो. कार्तिकेय मिश्रा, सार्थक, राजवर्धन, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60. चाहे कितना ही बड़ा हो, इक्वी एंगुलर हो गया ना. इक्वी एंगुलर यानी कि सिमिलर. पर कंडीशन क्या है. इक्विलेटरल होना चाहिए. आइसोसेलेस नहीं चाहिए अपने को. इक्विलेटरल चाहिए. All equilateral triangles are similar. Okay. Yes. Part 2, please. And I'm not able to see all the words of the question number 4. All squares are dash. ये दिख तो रहा है. So, sir, part 1 answer question number 4. So, sir, Question number 1 part 2. Question number 1 का ये question number 1 ही होगा. Question 1 part 4. Part 2 कह रहा हूँ यार मैं. Part 2 बोला मैंने. Alright, sir. विराज part 2. Okay. All squares are dash. सारे squares क्या है. Similar है कि congruent है. Similar. No matter what is the size of the side, each angle will be 90 degree. Because each angle is 90 degree, their equiangular shapes and equiangular shapes will be similar. Okay, part 4. Now I'll reduce the size. Viraj, please see. Okay. It says 2 polygons of same number of sides. 2 polygons of same number of sides are similar. 3 कंडीशन मैंने बताई थी आपको. सेम साइड्स होनी चाहिए. तो their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. Very easy. Angle should be this and side should be this. Equal and हाँ ठीक है. पहला इक्वल आएगा. ओके सब लोग ठीक है. राजवर्धन, आशी करेक्ट, प्रथम करेक्ट. देखो एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी प्रोपोर्शनेट. राइट. तो अच्छा अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है.
पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मेरे को आंसर दो यार चैट बॉक्स में। मेरे को 2 सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल बताओ तुम लोग। सर किसका एग्जाम्पल? 2 सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल बताओ सर। ये होती है सिमिलर फिगर्स। So one is circle and the other one is square. डेली लाइफ से देना है ना, डेली लाइफ से, या डेली लाइफ से मत दो, कैसी भी लाइफ से दे दो तुम। हाँ लिखो लिखो। सर मेरे पास अभी सामने है सर ये। अच्छा रुको एक मिनट, मैंने लाइन भी नहीं खींची गाइस, मैं दोबारा कर रहा हूँ, प्लीज दोबारा कर लो। क्वेश्चन नंबर नहीं, एक्चुअली वो नंबर तो लिख दिया था क्वेश्चन का, क्या अभी डाल दो दोबारा। ओके, कई बार वो पता है एग्जाम में बोलते हैं गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फ्रॉम डेली लाइफ। तो डेली लाइफ से अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? 2 कार्ड्स फ्रॉम द सेम डेक। सर रूबिक्स क्यूब। वो तो खैर कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ, 2 रूबिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और 2 व्हाट डू कॉल क्या सर स्केच पेन। नहीं स्केच पेन तो नहीं बोल सकते, वो स्केच पेन तो अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या फेंकते हैं अपन? डाइस खेलते हैं ना, खेलते वक्त जो डाइस फेंकते हैं, 2 डाइस ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। सर और बुक्स ऑफ डिफरेंट साइज। सर नोटबुक। बुक्स नहीं हो सकती, क्यों नोटबुक? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नोटबुक का हो सकता है एक स्क्वायर शेप में हो, एक रेक्टेंगल शेप में, और जैसे ड्राइंग की बुक तो लंबी रेक्टेंगल होती है। गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे यू कैन से 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब दोनों सर्कुलर है लेकिन डिफरेंट साइज की है, तो सिमिलर होगी। नॉन सिमिलर तो ये वाला एग्जांपल दे दो, रेक्टेंगुलर नोटबुक एंड स्क्वायर नोटबुक, शॉर्टर स्केच पेन एंड टॉलर स्केच पेन, लॉन्गर स्केच पेन, इस तरह के हो सकते हैं। बहुत बेसिक आइडिया है, आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझना है। स्केच पेन के शेप तो सेम ही है। नहीं जरूरी थोड़ी है, अलग अलग शेप होते हैं यार, कोई ऐसे ढक्कन आता है, कोई वैसे ढक्कन आता है। ओके सर। लॉक का दे दो, डिसिमिलर में तो कुछ भी दे सकते हैं। ओके, अच्छा ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पार्ट 1 है, छोटा वाला नहीं छोटा वाला एक ही है, दो ही है, एक ही पार्ट है, या क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी इज दिस सिमिलर और नॉट सिमिलर? सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन 3 अच्छे से। सर पूरा सवाल नहीं दिख रहा। ठीक है, रुको 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 रुको, छोटा कर दिया। हाँ अब देखो, सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। So at the very first time I have written the answer wrong, sir. Then I have made the ओके amendment. ओके ओके ओके, okay, stop. Right, these okay, Prathanam say not similar, Rajvardhan say not similar, no, they are not similar because see ट्राइंगल के केस में क्या होता है, ट्राइंगल के केस में दोनों में से एक क्राइटेरिया प्रूव कर दो, इसलिए मैंने और लिखा है यहाँ पे। ट्राइंगल में दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया प्रूव कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द सेम इन क्वाड्रिलेटरल्स, बिकॉज इन केस ऑफ रोम्बस, व्हाट इज अ रोम्बस? रोम्बस इज अ टिल्टेड स्क्वायर। तो रोम्बस की सारी साइडें एक प्रोपोर्शन में हो सकती हैं, बट वो इक्विएंगुलर नहीं होगा। दोनों शेप जो होंगी, जो दोनों की दोनों शेप्स डिफरेंट शेप्स होंगी, सेम शेप नहीं होगी, शेप अलग होगी क्योंकि एंगल अलग हो गया। सो इन दिस केस दे आर नॉट सिमिलर इज द राइट आंसर। ओके guys, now I am taking you to the next exercise. This exercise over, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सार्थक कर लोगे ना कि भैया एक ट्रायंगल दे दिया, दूसरा बोल दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं, एक की साइड दे रखी है, दूसरे की पूछा, दूसरे की एक साइड तो देनी पड़ेगी उसको, बाकी दो पूछ रहा है, कर लोगे सार्थक? यस सर हो जाएगा।
वही प्रोपोर्शन वाले से हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से हो जाएगा, सेम रेशियो में रहेंगे, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे. What is the difference between ratio and proportion? When the ratios are same, we say that they are whatever the figures are given are proportional. If have the same ratio, then we call them proportional. Okay. I will not be doing the proof of basic proportionality theorem, Thales theorem now during this revision, because long revision और तुम लोगों को मैं 3 बार समझाऊंगा तब भी याद नहीं रहने वाला. In any case, I don't think exam में they're going to ask you for proof of Thales theorem. फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हें लगता है टाइम कम है थोड़ा, अभी मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, कल चलो प्रूफ भी कर दूंगा फिर, लेकिन तुम लोगों को जबरदस्ती नहीं है याद करने की, तुम मेरा वीडियो देख के बाद में समझते रहना आराम से अभी के लिए. सो बहुत दिस इज योर थ्योरम 6.1. This is called Thales theorem. Is also called BPT or basic proportionality theorem. सर थेल्स तो कोई आदमी था ना? हाँ बता रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. किसी को पता है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, या महावीर का किसी को याद हो? So Mahavir was born in 540 BC, and 540 BC Mahavir was born. Everybody heard of Mahavir, भगवान महावीर? Yes sir. जैनिज्म के वो थे, जैनिज्म के वो थे, वो जो संस्थापक थे. ये देखो कितनी पुरानी बात है, इंडिया में पैदा हुए थे. और 546 बीसी में तो ये मर गए थे. 640 बीसी में, उससे भी 100 साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ था, एक मैथमेटिशियन हुआ था ग्रीस में, जिसका नाम है थेल्स. जब मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना नेशनलिज्म यूरोप का, उसके अंदर एक पार्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. Then I'll touch upon this. So देखो कितनी पुरानी बात, उससे भी 100 साल पहले एक बंदे ने थ्योरम दिया, और उसने थ्योरम क्या दी? इन अ ट्राइंगल, ऐसे ही याद रखना है स्टेटमेंट. इफ in a triangle a line segment drawn पैरेलल टू एनी साइड. अब देखो ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, ट्राइंगल की बात कर रहा है. इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड, लेट अस से ABC है, मैं BC के साइड एक वो पैरेलल लाइन बोलते. पैरेलल का साइन सबको पता है ना, दोनों का एक ही डायरेक्शन में एरो, इसको पैरेलल बोलते हैं. Yes sir. So in a triangle a line segment drawn parallel to any side will divide the other two sides in same ratio. बस इतना सा है, कोई बहुत बड़ी तूफान नहीं है. हाँ, थोड़ा सा इसका प्रूफ थोड़ा दिमाग की दही करने वाला है, वो मैं करवाऊंगा कल, लेकिन तुम लोगों को जबरदस्ती नहीं है अभी करने की. अब तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. तो क्या बोल रहा है? डिवाइड्स इन द सेम रेशियो. सो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB. इसका प्रूफ भी कल करेंगे. अब बस इतना समझ लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो कैसा है, अगर इसके साइड के इसके रेशियो में ये काट दिया, तो ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो विल बी सेम एज ये रेशियो और ये रेशियो. कैसा भी ट्रायंगल ले लो, इसके रेशियो में ये यहां काट दिया, यहां बिल्कुल बीच में, जरूरी नहीं यहां काट दिया, बट पैरेलल होनी चाहिए. तो इसका रेशियो और इसका रेशियो विल बी सेम एज इसका रेशियो और इसका रेशियो. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आए भाई? गाइस, द स्टेटमेंट इज क्लियर टू पीपल? एक बार लाइन खींचना सब लोग, मेरे को यस कर दो, इसको दोबारा कर दो, भव्या और सात्विक दोबारा कर दो. मैं लाइन नहीं खींची थी, दोबारा कर दो.
ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल साइड खींच दो, जो बाकी दोनों साइडों को ऐसे काटेगी कि उनका जो रेशियो होगा, यू कैन से इट विल कन्वर्ट, इट विल बिकम टू सिमिलर ट्राइंगल्स एक्चुअली। ये भी प्रूफ है, ये 6.3 है प्रूफ, थ्योरम 6.3। ठीक है, अचिंत्या अंडरस्टूड, आशी अंडरस्टूड, अंतरिक्ष अंडरस्टूड। भाई कुछ लोगों का मेरे को Yes, sir, आप लोगों को understood. डाउट है क्या? चैट बॉक्स में लिख दो। अंतरिक्ष आपने सर चैट बॉक्स में लास्ट लिख, वाला समझ नहीं आया सर वो। कौन सा वाला नहीं समझ में आया? कार्तिक सर ये रेशियो इक्वल है, फिर सर आगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन अ ट्राइंगल लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड। मेरे पास एक ट्राइंगल है, समझ रहा है, और मैंने Yes, sir. जैसे ट्राइंगल लेट्स से तेरा PQ आ रहा है, PQ आ, और मैंने इस साइड की पैरेलल साइड खींच दी है, लाइन खींच दी, लेट्स कॉल दिस XY, और यस ये सर। दोनों पैरेलल हैं। तो थेल्स ने बोला कि PX अपॉन XQ, इसका रेशो, इसका और इसका जो रेशो होगा वो एग्जैक्टली सेम हुआ जो PY और YR का रेशो है। तो अगर ये 2 और ये 3 होगी तो ये 4 और 6 होगी, यस सर, यस सर, ताकि क्लियर। इनका इसका रेशो 2/3 विल बी इक्वल टू 4/6, ये बोलता हूँ। यस सर। ठीक है, कल हम इस पे बेस्ड, पहले तो क्वेश्चन शुरू करूंगा तुम लोगों को, थ्योरम बाद में, क्योंकि मेरे पास कब है तुम्हारा एग्जाम? परसों भाई? यस परसों है। हाँ परसों है ना, तो हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, कल का दिन है। तुम एक तो अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना 6.2 के पूरे, मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ 6.2, और करके आना, तैयार होके आना, जितने डाउट में कराऊंगा फटाफट एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा, कल 6.2 करा दूंगा, ठीक है? चलो, okay guys, we say goodbye for now and we meet tomorrow. Please do the questions, I'm sending the questions. Bye everyone, bye बाय सर। Thank you, sir. bye Bye, sir. Bye, Thank sir. you. bye guys, bye everyone, bye everyone. चलो